4 या 5 दिनों का एक सीज फायर होगा कि इसमें कोई बमबारी कोई गोलाबारी नहीं होगी, जिसके दरमियान इजराइल 150 बच्चे और औरतें समेत लोग वो रिलीज करेगा। उसके एवज में उधर से 50 हॉस्टेजेस, औरतें और बच्चे ज्यादातर, वो हमास रिलीज कर। अब ये हमारा एक्शन है और आगे भी इजरायली ऐसे जहाज अगर निकलेंगे तो उन पर हमारी नजर होगी। और जो आप कत्लो गारत आप कर रहे हैं गजा पर और वेस्ट बैंक में भी, आपको जुर्माना तो भरना पड़ेगा किसी तरह से। ये क्या ये कहा है ये दरअसल जो ट्रूडो साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था वो खाना खाने से पहले दे दिया था। अच्छा। उस वाकये से पहले ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था। उसके बाद जो है उनको घेर लिया गया और पूरी मगरिबी दुनिया के शायद पहले ऐसे लीडर हैं जिनको खाना खाने के टाइम पे घेर के जो है उन्हीं के शहरियों ने जो है उनकी जो है तनकीद की है। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮਾਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੈਬਲਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल है। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ आवाज उठाई है तो वो कनेडियन वैल्यूज के मुताबिक ही है। बिल्कुल, लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये भी हुआ है कि जो 5 कनेडियन एमपीज फिलहाल इजराइल में जाके बैठे हुए हैं, उत्थे बैठे हैं जो लिबरल भी है, तो हाँ, 2 लिबरल एमपीज, 3 कंजर्वेटिव एमपीज की 13,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये वन साइडेड है। शुरू में 7 अक्टूबर को 1200 लोग मारे गए थे, वो एक दहशतगर्दी हमला था, लेकिन दहशतगर्दों को खत्म करने के चक्कर में आप बेगुनाह लोग, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, आपने किसी में फर्क नहीं किया, आप जो है बमबारी करते गए। अब इजराइल की एक मिनिस्टर वो कह रही हैं, अब वो ब्लेम दुनिया पर डाल रही है, बोली कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों को निकाल के अपने अपने मुल्कों में सेटल कीजिए। अब कनाडा से यही उम्मीद है। The Harjinder Thin Show। ਮਨੀਮੁਕਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਦਰਅਸਲ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਖਦੇੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਸਪੀਟਲਸ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜੰਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੌਸਟੇਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਟੇਜ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮਸ ਨੇ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਿਕਟਮਸ, ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਕਸ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਸੋ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। आपका बहुत शुक्रिया थिन साहब। सो कहते किसी घंटे भी हुण सीज फायर हो सकता? हाँ, हो सकता है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसका ऐलान किया है और नेतन्याहू साहब ने भी इसकी पुष्टि की है
और कतर से भी जो हमास का लीडरशिप है उनकी जानिब से भी ये समझ में आ रहा है कि एक आप कह सकते हैं कि एक टेंटेटिव ट्रूस ये हो सकता है, और हो सकता है कुछ ही घंटों में या शायद मिनटों में इसका ऐलान हो जाए, बशर्ते ये कि इजराइल जो है इस शर्तों को जो है मान ले। क्योंकि नेतन्याहू साहब के लिए उनका चैलेंज भी है कि पहले तो अपने कैबिनेट को वो कन्विंस कर पाए, क्योंकि उनके कैबिनेट में भी फार राइट लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि कोई भी समझौता हो किसी के साथ भी। लेकिन अगर ये होता है और होने की उम्मीद है तो 4 या 5 दिनों का एक सीज फायर होगा कि इसमें कोई बमबारी कोई गोलाबारी नहीं होगी, जिसके दरमियान इजराइल 150 बच्चे और औरतें समेत लोग वो रिलीज करेगा। उसके एवज में उधर से 50 हॉस्टेजेस, औरतें और बच्चे ज़्यादातर, वो हमास रिलीज करेगा। हमास के पास 236 हॉस्टेजेस हैं, 242 उन्होंने हॉस्टेजेस पकड़े थे, लेकिन कुछ तो मारे गए हैं। उसके बाद जो इजराइल के तरफ से जो फिगर दिया गया 236 का है, में से 50 पहला स्टेप है ये, 50 लोगों को वो रिहा किया जाएगा। अब 5 दिन की सीज फायर की जो बात हो रही है, ये दरअसल जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज का डिमांड कर रही थी कनाडा और ऐसे और भी मुल्क, ये दरअसल वही है, ये ह्यूमैनिटेरियन पॉज ही है कि इसी बीच लोग भी जाएंगे इधर उधर, और साथ ही साथ जो है जो रसद और बाकी जो है रिलीफ सामान जो है वो भी आएगा। हाँ, ट्रकों को अभी, और दिन में 2 ट्रक इजराइल अलाउ कर रहा है फ्यूल का सिर्फ। तो ये एक शायद एक बड़े पैमाने पे ये एक एक्सचेंज होगा, मतलब रिलीफ सामग्री का। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਪ ਯਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ सेटलमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ कोई रोल अदा कर रही हैं? देखिए, इजराइल पर प्रेशर तो है, हालांकि वेस्टर्न गवर्नमेंट्स खुल के इजराइल, एटलीस्ट पब्लिकली, इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जो बैकडोर जो बातें हो रही हैं या फिर जो प्रेशर उनकी तरफ से दिया गया है वो काफ़ी है, समझ में आ रहा है। साथ ही साथ अब जैसे यमन ने हूथी रिबेल्स जो हैं उनके, दरअसल एक्चुअल में वो गवर्नमेंट ही है, 85% इलाका यमन का उन्हीं के हाथों में है। तो उन लोगों ने एक वीडियो भी उन लोगों ने रिलीज़ किया है जिसमें एक हेलीकॉप्टर से उन्होंने हथियारबंद जो है सिपाही उतारे हैं जहाज़ पर। उन लोगों ने कहा कि ये इजरायली जहाज़ हैं, यानी ओनर जो है उनका डायरेक्ट लिंक है इजराइल के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। लेकिन इसमें ब्रिटेन भी है और जो जापान भी है, उनके स्टेक्स भी हैं उस जहाज़ में, और जापान ने तो अपील किया है। और जो 25 लोग क्रू में जो हॉस्टेजेस बना लिए गए हैं उनमें अलग अलग नेशनैलिटी के लोग हैं। ये रेड सी में ये जहाज़ पकड़ा गया, टर्की से निकला था और हिंदुस्तान जाने वाला था ये जहाज़। अच्छा। हाँ, बीच में इसको जो है घेर के कब्जे में ले लिया गया है। अब यमन या फिर हूथी रिबेल्स कह रहे हैं कि अब ये हमारा एक्शन है और आगे भी इजरायली ऐसे जहाज़ अगर निकलेंगे तो उन पर हमारी नज़र होगी। और जो आप कत्लो गारत आप कर रहे हैं गजा पर और वेस्ट बैंक में भी, आपको जुर्माना तो भरना पड़ेगा किसी तरह से। ये कहा है हूथी रिबेल्स ने। अब इजराइल ने बोल दिया कि इसमें ईरान का हाथ है, क्योंकि हूथीज को सप्लाई तो ईरान करती है। ईरान ने बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। तो ये अब हो रहा है एक्सचेंज। लेकिन जो हूथी रेबल्स ने वो मुस्लिम ग्रुप है। हाँ, नहीं, वो यमन में वो ईरान सपोर्टेड है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोले ਇਹੋ ਜਿਹੇ आधुनिक हथियार या होर साजो सामान नहीं, ये ईरान कोले है। नहीं, ईरान देता है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये हूथी रिबेल्स बड़ा मिसलीडिंग टर्म है, क्योंकि ये रिबेलियन हुआ था, इस ग्रुप ने जो है फतेह पाई, और जो यमन की जो सरकार है दरअसल सऊदी अरेबिया के रियाद के एक होटल से ऑपरेट करती है। पूरी फौज और बाकी सब कुछ, पार्लियामेंट वगैरह सब कुछ दरअसल हूथीज चला रहे हैं। मतलब 85% इलाका यमन का ये इस रेबेल फॉर्मेशन के हाथ में है। लोगों ने इसको रिकग्नाइज नहीं किया है ईरान के अलावा, ये अलग मामला है। लेकिन एक्चुअली इन प्रैक्टिस तो ये पूरी की फौज, उनकी जो ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल आर्मी है, ये हूथीज के कंट्रोल में है।
तो ये फौज नहीं, ये ऑपरेशन अब हेलीकॉप्टर से हर कोई तो सिपाही नहीं उतार सकते ना किसी जहाज पर, तो आपको एक प्रोफेशनल आर्मी होना पड़ेगा, तो वो है। तो इनके पास हथियार वगैरह सब कुछ है। और हिजबुल्लाह ने, जैसे आपने बताया, ईरान के नॉर्दर्न पार्ट में, इसराइल के उस पर उन्होंने बमबारी की है। बदले में इसराइल ने भी एयर स्ट्राइक्स किए हैं। तो इससे जो है कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने का एक खतरा तो है, और ये काफ़ी टाइम से बना हुआ है। लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं चाहेगा ये एस्केलेशन इस हद तक चला जाए कि भाई बाकी सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएं। हालांकि जॉर्डन ने कह दिया है कि वो अपने सिपाही भेजेंगे नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो उनके बादशाह ने जो है स्टेटमेंट्स दिए हैं, या जो है सऊदी अरेबिया के जानिब से भी जो स्टेटमेंट्स आए, इससे साफ लग रहा है कि ये बड़े अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि उनके लिए भी, इन गवर्नमेंट्स के लिए भी अपने लोगों को जवाब देना पड़ता है, और मुश्किल होता जा रहा है इंक्रीजिंगली कि आपके तो सफारती ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ, लेकिन वो कत्लो गारत कर रहा है, औरतें, बूढ़े, बच्चे, मजलूम सबको ख़त्म कर रहा है। तो आप इन लोगों के साथ कैसे आप रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं? ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਦ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤਨਯਾਹੂ ਚਿੜ ਗਏ। हाँ। और उन्होंने भी इस किस्म की गल्लां बातां करनी, मेरा ख्याल रिलेशनशिप हुण बिगड़ गए। जी 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 बिल्कुल। और ये दरअसल जो ट्रूडो साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था, वो खाना खाने से पहले दे दिया था। अच्छा। उस वाक़ये से पहले ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था। उसके बाद जो है उनको घेर लिया गया, और पूरी मगरिबी दुनिया के शायद पहले ऐसे लीडर हैं जिनको खाना खाने के टाइम पे घेर के जो है उन्हीं के शहरियों ने जो है उनकी जो है तनकीद की है। तो अब ट्रूडो साहब पे प्रेशर है, वो दिख रहा है, क्योंकि एक पोल का भी मैंने पहले जिक्र किया था, टोरंटो में हुआ था, जिसमें 41% जो कैनेडियंस हैं उन्होंने ये कहा था कि वो ट्रूडो साहब के स्टैंड से इत्तेफाक नहीं रखते, जब उन्होंने कहा था कि हम हमास की तायद, हम इजराइल की तायद में खड़े हुए हैं हमास के खिलाफ। वो एग्री नहीं करते 41%, ये बहुत बड़ा फिगर है। 38% लोग ही कुछ हद तक एग्री कर रहे थे उनके स्टाफ। तो इंटरनली भी, और जिस तरह से प्रोटेस्ट आप देख पा रहे हैं, वो वैंकूवर में हुए हैं, वो टोरंटो में हुए हैं, फलस्तीनियों के हक च नहीं ज़्यादा। हाँ, उन्हीं के हक में हुए हैं, और यहूदी लोग भी ਉਹਦੇ 'ਚ खड़े होंगे। हाँ। तो अब इंक्रीजिंगली कनाडा के लिए, और जैसे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था कि कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो वहाँ से इमेजेस निकल के आ रहे हैं उसमें तो साफ झलक रहा है कि ये तो एक वन साइडेड किलिंग हो गया है। इसीलिए ट्रूडो साहब ने भी कहा कि ये यू शुड एक्सरसाइज रिस्ट्रेन, ये अनरिस्ट्रेन किलिंग ना हो। और इससे पहले तक एक फिक्शन चला हुआ था कि इजराइल की आर्मी बड़ी प्रोफेशनल है, और वो औरतें और जो है जो बेगुनाह हैं उन पे हमला नहीं करते, लेकिन ये एक्सपोज हो चुका है। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि 13,000 से ज़्यादा लोग, और ये बच्चे भी 5,000 बच्चे, ये हमास के लीडर्स थे या हमास के फाइटर्स थे, आप ये नहीं कह सकते। तो इंक्रीजिंगली ये इसको छुपाना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये भी हुआ है कि जो 5 कैनेडियन एमपीज फिलहाल इजराइल में जाके बैठे हुए हैं, उत्थे बैठे हैं, जो लिबरल भी है, तो हाँ, 2 लिबरल एमपीज, 3 कंजर्वेटिव एमपीज। लिबरल एमपी में एंथनी हाउस फादर है, मार्को मेंडिचिनो है, और एंथनी हाउस फादर ने वहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि ये दरअसल लोग गलत समझ रहे हैं कि कनाडा इजराइल के खिलाफ हो गया है, क्योंकि ये नेतन्याहू साहब के और ट्रूडो साहब के दरमियान जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं, इसको देखा जा रहा है एक डैमेज कंट्रोल मूव हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ बोलते बोलते उन्होंने ये बात भी कही, हाउस फादर ने, कि अगर वो ट्रूडो साहब की जगह पर होते तो ट्रूडो साहब के अल्फाजों का इस्तेमाल वो करते नहीं, है ना। तो उन्होंने जो भी कहा और जो टोन में कहा, ये बगावत भी हो रहा है। हो सकता है अब इंटरनली शायद थोड़ा सा हो रहा है उनके बीच में कि भाई ट्रूडो साहब जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं वो गलत है। लेकिन आप देखिए कि आप एक लेवल पे आपने ये बोल दिया इजराइल में जाके, इजरायली प्रेस को, कि भाई हम तो आपके सपोर्ट में है। नहीं, ट्रूडो दा प्रधानमंत्री दा एक एमपी, उन्होंने दी लिबरल पार्टी दा एमपी उन्होंने दे खिलाफ गल करे, हाँ, ये तो बागी सुर कटन वाली गल। हाँ, और ये जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने ऐसे एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें बोला है कि जो वेस्ट बैंक पर इजरायली सेटलर्स का जो वायलेंस हो रहा है पैलेस्टीनियंस पे, वो बंद होना चाहिए। हाँ, और वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बिकॉज अगर आप 2 स्टेट सोल्यूशन की अगर बात करते हैं, वो तभी मुमकिन होगा अगर वेस्ट बैंक से जो ऑक्यूपेशन है वो ख़त्म हो। पर शर्मा जी, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਹਮਾਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੈਬਲਸ ਨੇ ਹੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। हाँ बिल्कुल है। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ उठाई है तो वो कनेडियन वैल्यूज़ के मुताबिक ही है। बिल्कुल सही है और ये हक की बात है। आप बस ट्रूडो साहब से जो नाराज़गी है बहुत लोगों की वो ये है कि वो कोई क्लियर स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे। अब उनके लिए वो समझ में आता है क्योंकि एक तो है कि इजराइल और उसके साथ जो है उसका एक बहुत पावरफुल लॉबी है पूरी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा वेपन सप्लायर है, टेक्नोलॉजी सप्लायर है। दुनिया के हर बड़े मुल्क, यूनाइटेड स्टेट्स भी इजराइल से जो है वो टेक्नोलॉजी वो ख़रीदते हैं। अब इतने रिलेशंस आपके पास आपके हैं, साथ ही साथ बहुत पावरफुल जूविश ग्रुप्स हैं कनाडा में, और ऐसे आपके पार्टी में, हर पार्टी में उनके साथ सिंपथाइज करने वाले लोग हैं। अब ऐसे में लेकिन कनाडा जो डाइवर्स एक देश है, बहुत अलग अलग जगहों से जो है पीपल ऑफ कलर आ रहे हैं। अल्टीमेटली ये जो रेजिस्टेंस है ये पीपल ऑफ कलर उन्हीं की तरफ से आ रहा है ना सबसे ज़्यादा, तो उनको अब उसको भी जो है फैक्टर इन करना पड़ेगा, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि ये ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ ये कनाडा के वैल्यूज़ हैं। कनाडा ने हमेशा से यूनाइटेड स्टेट्स का लेफ्टिनेंट बनना मुनासिब नहीं समझा है। 2003 में जब इराक पे हमला किया था तब भी कनाडा ने इसकी मुखालफत की थी। आप देखिए ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं माजी में जब कनाडा ने इस यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जाना मुनासिब नहीं समझा। तो अब इस केस में जो क्लियर एक आर्गुमेंट है वो ये कि 13,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ये वन साइडेड है। शुरू में 7 अक्टूबर को 1200 लोग मारे गए थे, वो एक दहशतगर्दी हमला था, लेकिन दहशतगर्दों को ख़त्म करने के चक्कर में आप बेगुनाह लोग, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, आपने किसी में फ़र्क नहीं किया, आप जो है बमबारी करते गए। अब इजराइल की एक मिनिस्टर वो कह रही हैं, अब वो ब्लेम दुनिया पर डाल रही है, बोली कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों को निकाल के अपने अपने मुल्कों में सेटल कीजिए। अब कनाडा से यही उम्मीद है कि पैलेस्टीनियन लोगों को जो है वो निकाल के कुछ लोगों को बोले, क्योंकि मार्क मिलर ने कुछ हफ्ते पहले ये स्टेटमेंट दिया था, आई भी जा रहे हैं। हाँ, और वो बोले थे कि भाई जो भी जंग से भागा हुआ है वो हमारे यहाँ वेलकम है। लेकिन अब दुनिया भर की नजर, दुनिया की निगाहें कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ब्रिटेन पे टिकी हुई है, इसलिए भी क्योंकि आप लोगों को निकाल लेंगे वो बड़ा आसान है, और वो तो इजराइल चाह भी रहा है क्योंकि उसको उस पूरे इलाके पे उसको कब्जा करना है। लोग अगर निकल जाएंगे तो वो पूरा इलाका उसका हो जाएगा। एक बार निकल गए तो वापस कभी आ नहीं पाएंगे। दूसरा ये खतरा इजिप्ट, जॉर्डन और बाकी देशों पे ये भी है जो उसके जो है बिल्कुल इर्द गिर्द है कि अगर आपने रेफ्यूजीज को वेलकम कर लिया, यहीं से आगे रेजिस्टेंस फाइटर्स निकलेंगे, आपकी ज़मीन से वो इजराइल के ख़िलाफ़ जंग जारी रखेंगे और इजराइल फिर आपसे भी जंग करने पे वो मजबूर हो जाएगा। तो वो ये भी नहीं होने देना चाहते। लेकिन रेफ्यूजीज़ को निकाल लेना मसले का हल नहीं है, इसीलिए कनाडा के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ट्रूडो साहब कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनके लिए ये बड़ा चैलेंजिंग है। और मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान और चाइना के साथ जो भी उनके रिलेशन रहे हों ख़राब हैं फ़िलहाल, लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि अब इसमें जो उनके हक में थे जो लोग, वो भी अब उनको शक हो रहा है कि क्या उनका फैसला सही था, क्या ट्रूडो साहब एक सही लीडर हैं इस मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये सवाल बहुत लोगों के जहन में उठ रहा है और ये मेरे ख्याल से उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਊਜ਼ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। और टिन साहब इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि आपने यूनाइटेड स्टेट्स के यूनिवर्सिटीज़ में तो रैलीज़ आपने देख ली हैं, आपने इतने कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में पैलेस्टाइन के हक़ में या इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई रैली आपने शायद ही देखा होगा। क्योंकि अब जिस तरह से जो ये इज़राइल की हिमायत करने वाले बहुत लोग हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हो या इंस्टीट्यूशंस में हो वो बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि वो ये लोग जो हैं पैलेस्टाइन के हक़ में कोई भी बात कहें। इसीलिए जो है एक आर्काइव बनाया जा रहा है उन लॉबी ग्रुप्स के ज़रिए कि एकेडेमिया में कौन से लोग हैं, वो प्रोफेसर्स, वो स्टूडेंट्स कौन हैं जो इज़राइल के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, आगे इनको नौकरियां नहीं मिले। तो ये ख़तरा भी है लोगों को। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग खुल के अगर दिल में जो भी उनके सेंटिमेंट्स खुल के आ नहीं रहे हैं, लेकिन जिस दिन इलेक्शंस होंगे
वोट करने जाएंगे उस दिन उनको जग जाहिर नहीं करना होगा वो क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं सिर्फ बटन दबाएंगे या फिर पर्चा भरेंगे। तो उसमें उनका फैसला क्या होगा ये मेरे ख्याल से लिबरल पार्टी को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एक होता है एक ह्यूमैनिटेरियन स्टैंड, जो एक जस्ट मुल्क आप समझते हैं खुद को और आप चाहते हैं दुनिया भर के लोग आपको एक्नॉलेज करें, उसके लिए ये एकदम बेसिक मिनिमम है कि आप अपनी कही बात पर आप टिक पाए, खुद आप कायम रह पाए। तो ट्रूडो साहब के लिए मतलब आई वुड नॉट एनवी हिम उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज तो है जी। शर्मा जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया थोड़ा। आपका बहुत शुक्रिया टन साहब।